हेलो गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन क्रिस्टल। हैप्पी न्यू ईयर 2026। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। एंड आई एम अ टैरो रीडर, आई एम एन आकाशा रीडर, आई एम ऑल्सो अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आई एम ऑल्सो palmist, आई एम एन MBA, आई एम अ सिक्स सिग्मा, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। एंड बिफोर आई एक्सप्लेन फर्दर, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे नहीं फॉलो किया तो कर लीजिए। इफ़ यू रेजोनेट विद टुडेज रीडिंग, आज की जो हमारी रीडिंग है, इट्स ऑल अबाउट मैसेजेस। बहुत सारे मैसेजेस के डेक्स हैं। देयर आर 7 मैसेजेस डेक्स विच आई हैव लाइक pulled out cards for pile number 1, and I will do that for each pile. The cards have already been pulled out. Intuitively मुझे हर एक पाइल से, मतलब हर एक डेक से मुझे जितने कार्ड्स समझ में आए उतना मैंने पुल आउट किया है। सो दैट इज रीजन वाई देयर इज नो फिक्स नंबर। कुछ कार्ड्स में ज़्यादा है, कुछ कार्ड्स में कम है। But if you guys have been in no contact and these are the messages from the person on your mind, or probably their higher self, if they want to come in and say something, convey something to you because you are not talking to each other, this is for pile number 1. So if you resonate with this particular reading, please like, share, subscribe, claim it with 1111 pile number 1. So without further ado, let's begin. I've got Shadow Side and Unappreciated from the Messages of Love Oracle deck. Oh my goodness, this is beautiful. Guys, claim this particular reading with 1111 pile 1. And if you want this to be happening faster, then please also save this particular alternatively so that this happens for you faster. Best Self, Confessions of a Soulmate में से, and Our Love is Real. Love's Oracle से आया है, You are amazing. Your love is amazing. Oh my goodness. I want to make it right. Beautiful energy. यहाँ से बहुत सारे messages. This is Lover's Oracle. This is another deck. That's Love's Oracle. This is Lover's Oracle. Please do what is best for your heart. I don't know who I am anymore. I am afraid to lose you. Wow, beautiful energy. Why do I feel so lost? Can't do this right now. I cry at night. Beautiful energies coming in. Why is it that you love me? My goodness, your person really loves you a lot. Mask and Death from the I forgot the name of the deck, but this is a cute deck. Okay, perfect. So Cupid's messages deck में से आया है balance, boundaries, let go of the need to control. Beautiful. Practical self-care deck से आया है balance. Yes. Get a reading. Please get a reading. Get a personal reading with me. If you'd like to connect with me, please DM me on Instagram, or alternatively in my description, connect with me on my WhatsApp. Take a 30-day challenge and beautiful energy, guys. Soulmate. Please claim this particular reading with 1111 pile 1. ओके, सो मुझे ये लग रहा है कि जो मैं यहाँ पर स्टोरी देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा ट्रिगरिंग चालू है. यू हैव ट्रिगर देम, मे बी उन्होंने आपको ट्रिगर किया है कहीं ना कहीं. यू गाइज आर एट दिस वेरी मोमेंट वर्किंग ऑन ईच, मतलब योर सेल्फ. जो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं. दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन फॉर श्योर. दिस इज कंफर्मेशन. यू गाइज आर वर्किंग ऑन योर शेडो साइड्स राइट नाउ. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के अंदर कुछ ट्रिगर हुआ है. इट कुड बी you need to overcome a few fears, you need to overcome certain issues that you face. मुझे यहाँ पर लग रहा है कंट्रोल इश्यूज हैं यहाँ पर किन लोगों को. So you guys are working on yourself. It could be you or your person. आपने उनको हाईलाइट किया है, ये चीज़ उनको समझ में आ रहा है. मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि one of you are putting more efforts. अभी see, you made me realize my flaws. तो मुझे लग रहा है तो आपने उनको बोला है, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनाई है उनको बोला होगा कि दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक यू, और प्रोबब्ली आई डोंट अप्रिशिएट दिस पर्टिकुलर पार्ट अबाउट यू. या मे बी आपका झगड़ा हुआ है एंड यू हैव सेड समथिंग टू देम व्हिच हैज मेड देम अंडरस्टैंड दैट दे रियली नीड टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर. कहीं ना कहीं मुझे लगता है द वे यू गाइज वुड हैव स्पोकन दैट टाइम जब आपका झगड़ा हो रहा था, तब आपने जिस तरह से बात करी, आपने जिस तरह से, शायद अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स इज जनरल रीडिंग. बट मुझे ऐसा लग रहा था अदर पर्सन इज फीलिंग कि वो पर्सन आपके बारे में कैरी नहीं करते हैं.
the other person is not caring for you. That is the reason why जिसने ब्लॉक किया है वो पर्सन केयर नहीं करते हैं, ऐसा अदर पर्सन को लगता है. एंड दैट इज द रीजन वाई वो कहीं ना कहीं ये मैसेज आ रहा है. दे फील दैट यू डोंट केयर. वो अनअप्रिशिएटेड फील कर रहे हैं अभी. बट आई डू फील लाइक कि वो अपने ऊपर काम करना चाहते हैं. दे आर वर्किंग टू बी बेटर फॉर यू. जो आपने अगर उनको कॉल आउट किया है, अगर आपने उनकी गलतियां निकाली है, तो वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं. एंड दे डू नो दैट दिस लव इज रियल. ब्यूटिफुल एनर्जी. So I do think that कि आपको इसको फटाफट से क्लेम कर लेना चाहिए. This is definitely far from over. You guys are coming back together. I want to make it right 100%. And that is the reason why आपने जो भी बोला है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं. They are working on, they are doing shadow work right now. They are coming back to you. And they have faith in you. Your laugh is amazing. या तो उन्होंने आपको कभी बोला है, if they have not said, you are amazing yourself. मतलब वो आपको बहुत appreciate करते हैं. They really are mesmerized by you. जल्दी से इस रीडिंग को क्लेम कीजिए विद 1111. वाई इज दैट यू लव मी. आपने जब उनको चीज़ें सुनाई थी तो उनको कुछ ट्रिगर हुआ है अंदर से, विच आई सी डेफिनेटली. आई नो. मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको उनके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ थी, या उनके अंदर उनको भी पता था कि कमियां हैं, वो ऊपर सरफेस हो गई. कई बार हम अपनी बहुत सारी चीज़ें अनदेखी करते हैं जिसे हम शेडो साइड्स बोलते हैं, पर आपने उनको वो हाईलाइट कर दिया और वो चीज़ ऊपर आ गई. जैसे कीचड़ में पत्थर मारते हो, कीचड़ हो चुके ऊपर आ जाता है, वैसे ही हुआ है उनके साथ में. सो कहीं ना कहीं उनकी इनसिक्योरिटीज़, उनकी कमियां आपने उनको याद मतलब दिखा दी हैं. नाउ दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर वर्किंग टू बिकम. वो शेडो साइड वही उन्हीं खामियों पे काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग टू बी द बेस्ट पर्सन फॉर यू. एंड दैट इज द रीजन व्हाई ये बोल रहे हैं कि आप, अगर मेरे अंदर इतनी खामियां हैं तो आप मुझे प्यार क्यों करते हो. इतनी गलतियां हैं मेरे अंदर, उसके बावजूद भी यू लव मी. दिस इज देयर इनसिक्योरिटी कमिंग आउट. आई क्राई एट नाइट. मुझे लगता है आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है. और वो अगर बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते, और दे डोंट ओपन आउट easily with people, open up easily with people, then I think they are silently अकेले में, जब भी अकेले होते हैं, जब आपको याद करके रोते हैं, they do think that you are amazing. My goodness, this is so much of pain. Please guys claim this with 1111 pile 1. I can't do this right now. वो अभी आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं for whatever reasons. Maybe they need a lot more shadow work to be done. अभी उनको लग रहा है कि they're still working on themselves. I do feel, why do I feel so lost? See, this when you are like, triggered, when your insecurities are surfaced out, when you're working on yourself, shadow work is difficult, it's demanding, it's draining. मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अभी वही कर रहे हैं. At the same time, in fact, they are afraid to lose you. This is so beautiful. I'm 100% sure उनको लग रहा है कि जब वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इतना टाइम ना चला जाए कि आप मूव ऑन कर लो और किसी और के पास चले जाओ. And that is the reason why probably they cry at night. Beautiful energies, guys. This is overwhelming. Please claim this with the 1111. I don't know who I am anymore. मुझे लगता है जो आपने उनको गलतियां दिखाई हैं, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं. उनको कहीं ना कहीं अपनी गलतियां समझ में आ रहे हैं. They really want to work on it. So this is a transition phase जहाँ पर they are trying to be their best self for you. Please do what is best for you, for your heart. आपके पर्सन आपसे 100% बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज इवन दो दे आर अफ्रेड टू लूज यू. वो आपको ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपके लिए जो सही है आप प्लीज़ वो कीजिए, बिकॉज दे रियली केयर फॉर यू एंड देयर लव इज रियल 100%. एंड दैट इज द रीजन वाई दे वॉन्ट व्हाट इज बेस्ट फॉर यू. आपको जो सही लगे, आपके लिए जो सही है, वो आपको कहीं ना कहीं हर्ट नहीं करना चाहते. नहीं वो चाहते कि आप हर्ट हो किसी भी तरीके से. दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी गाइस. प्लीज क्लेम दिस विद 1111 पाइल 1. Hiding true feelings, pretending I 100% feel like कि उन लोगों को नहीं बता रहे how much they miss you, how much pain they feel for this separation, no contact. दुनिया को दिखा रहे हैं कि everything is fine, I'm fine, but वो सच नहीं है. So they definitely have overwhelming feelings, and that is the reason why they cry, but they don't want to show it to people. The relationship is over, no second chances. कहीं ना कहीं मुझे लगता है डेथ.
आपने उनको ये बोला होगा कि यू डोंट वांट टू टॉक टू देम एवर, आपने उनको ब्लॉक किया हुआ होगा, और द अदर वे अराउंड, व्हाटएवर इज द सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ये रिलेशनशिप खत्म हो गई है क्या, बिकॉज ये उनको डर भी लग रहा है, बिकॉज दे आर स्केयर्ड टू लूज यू। उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिकॉज बाय द टाइम दे वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड बी रेडी टू कम टुवर्ड्स यू, कहीं देर तो नहीं हो जाएगी आप वास्तव में मूव ऑन हो गए तो। बैलेंस का कार्ड आया, देयर नीड्स टू बी ए हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो कनेक्शन था उसमें बैलेंस की कमी थी कहीं ना कहीं, तो ये वो रियलाइज कर रहे हैं इधर। सो मुझे काफ़ी जैसे अंडर एप्रिशिएटेड का भी कार्ड आया है। आई लव इट व्हेन द एनर्जी इज एब्सोल्युटली इन सिंक, यू नो। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये कनेक्शन में हो सकता है कि उनकी तरफ से एफर्ट्स की कमी थी, आप ज़्यादा कर रहे थे, या दे वर नॉट एक्सप्रेसिव। सो आई थिंक बैलेंस नहीं था ये रिलेशनशिप, दिस वॉज अ वेरी अनबैलेंस कनेक्शन एंड दैट इज द रीजन वाई ये जो भी हो रहा है दिस हैपेंड। Boundaries. You need to teach people how to treat you by being clear on what you will or what you will not allow. मुझे लग रहा है कि जो ये मैं बैलेंस की बात कर रही हूँ, जहाँ पर थोड़ा सा इम्बैलेंस था, ये तो मुझे ये भी लग रहा है कि उनकी तरफ से कहीं या शायद आपकी तरफ से कहीं वन ऑफ यू हैज डन मोर, गिवन मोर, और हो सकता है कि नहीं तो फिर थर्ड पार्टी की तरफ से कोई इंटरफेरेंस भी हो रहा हो। Why am I saying boundaries? Boundaries always comes with not between the two people, but हो सकता है कि और लोग भी आ रहे थे and they didn't know, मतलब they were probably allowing other people to interfere in the connection. हो सकता है, I don't know why I am feeling this from this particular card. मुझे लग रहा है कि उन्होंने या तो दूसरे लोगों की सुनी है आपके कनेक्शन में, या आपके कनेक्शन को लेकर और लोगों को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है and they have allowed other people to disrupt this connection. या आई डू फील लाइक कि ये हुआ है इस कनेक्शन में। सो मुझे लगता है दैट इज द रीजन वाई आपने उनको कॉल आउट किया है, अब वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं शायद। दे हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अभी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे उन्होंने ये सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दी है, कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर काम उन्होंने मतलब देव के बिना कहीं ना कहीं वो ये बोल रहे हैं कि भाई अब जब जो होना है वो तब होगा। आई एम गोइंग टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई एम नॉट रेडी येट टू कनेक्ट बैक। तो अगर आप लोग उनकी तरफ से उन्होंने बंद किया हुआ है कनेक्शन, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक दे आर राइट नाउ नॉट इन द कंडीशन टू लाइक टेक अप द सिचुएशन इन देयर हैंड्स। उनको अभी वो धीरे धीरे उन्होंने इसको छोड़ा हुआ है थोड़ा सा कनेक्शन को। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस, देखिए बैलेंस का कार्ड 2 बार आया है 100%। आई लव इट व्हेन द रीडिंग्स आर एब्सोल्युटली एक्यूरेट। सो दिस इज आई एम लाइक दिस इज 100% एक्यूरेट रीडिंग। प्लीज क्लेम दिस, गेट अ रीडिंग। अगर आप लोगों को मेरे रीडिंग की जरूरत है तो प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर पर्सनल रीडिंग। इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में इन माई चैनल बायो इट इज ऑलरेडी मैंशनड। टेक अ 30-day चैलेंज। मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपने ऊपर बहुत सारा काम कर रहे हैं। दे डिसाइडेड कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, आई वर्क ऑन माई दिस, आई विल वर्क ऑन माई दैट थिंग। कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपने उनकी कोई गलतियाँ निकाली है तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट 100% गाइज दिस इज आवर लव इज रियल, दिस इज सोलमेट कनेक्शन। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। क्लेम दिस एनर्जी विद 1111 pile 1। I love it. All the messages are very beautiful. अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। If you want a personal reading, please connect with me. I'll be seeing you in my next video. Take care. I'm sending you absolute love and divine healing energies. Hi guys, Happy New Year 2026. Welcome to Question Crystals. My name is Charagi Dakshini. I'm also known as Kaira. That's my soul name, by the way. I am a tarot and Akashic reader. I'm a Vedic astrologer, a palmist, and also certified yoga teacher. I'm Green Wheels in Six Sigma. I'm MBA Finance. I'm an MA in Gender Studies. Okay, that's a lot about me. आज का जो हमारा रीडिंग है, that's all about people in no contact. उनकी तरफ से क्या messages हैं? I have all the 7 different decks of messages only. I'm going to go one by one and see what are the messages coming through for you. I've already sort out the cards. This is for pile number 2.
अगर आपने मुझे अभी तक ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. आई विल बिगिन विथ योर रीडिंग. सो मैसेजेस ऑफ लव ओरेकल डेक से आए हैं. डे ड्रीमिंग, आई थिंक अभी आप बात नहीं कर रहे हैं तो दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट. डे ड्रीमिंग कर रहे हैं. Secrets, maybe there are secrets in this particular connection. Everything is not out and about. या हो सकता है कि उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई थी जो आपको पता चल गई. दिस इज द रीजन वाई यू गाइज आर नॉट टुगेदर और यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया. डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव. मुझे लगता है कि या तो उन्होंने कुछ गलती कर दी, कुछ चीज़ें छुपाई टाइम पे जो चीज़ करनी थी. हो सकता है दे डिडंट कन्फेस ऑन टाइम एंड and maybe things have really, या फिर they did not really come forward and discuss things with you properly. Oh my goodness. इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी की वजह से मुझे लग रहा है कि दे फील दैट दे हैव लॉस्ट यू. अगर आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है तो दे आर एट दिस वेरी मोमेंट रियली इन पेन. अगर उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई एंड यू कम टू नो दे आर फीलिंग इनसिक्योर कि कहीं आप उनको कभी माफ़ नहीं कर पाए तो क्या होगा. But they are hopeful that कि किसी न किसी दिन आप उनको माफ़ कर दोगे and you will understand that how much they love you and how much they care for you. Because they are hopeful for new beginnings. Claim this reading with 1111 pile 2 guys. This is beautiful energy for you. So वो hopeful हैं कि आप लोग वापस से साथ हो जाएंगे. Lovers Oracle, that was from Confession of Soulmate card. लव्स ओरेकल से मुझे आया है आई एम असेंडिंग. आई डू अंडरस्टैंड दैट कि वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग टू बी बेटर पर्सन फॉर यू. कर्मा, अगर उन्होंने झूठ बोले हैं, चीज़ें छुपाई हैं, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बात नहीं कर रहे तो उनका कर्मा उनको मिल रहा है. आई एम डन प्रिटेंडिंग. आई नो. देखिए, आई लव इट when the energies are absolutely accurate. कर्मा का कार्ड आया था कि सीक्रेट छुपाया, उन्होंने कुछ चीज़ें छुपाई हैं. इनसिक्योरिटी का कार्ड आया था. मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है. इट्स ऑल एक्यूरेट. आई एम डन प्रिटेंडिंग. मतलब अगर उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं, अगर उन्होंने कुछ प्रिटेंड किया था तो दे आर सेइंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट एनी मोर. दे आर रेडी टू टेल यू बी ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ योर्स. वो रियली जेन्युइनली आपसे बात करना चाहते हैं, जेन्युइनली आपके सामने आना चाहते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहते, छुपाना नहीं चाहते. चीज़ें जो भी है वो वैसे बोलना चाहते हैं. लवर्स ओरेकल कार्ड से आए हैं. द पैशन आई फील इज ओवरवेलमिंग. आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस. वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन और खिंचाव फील कर रहे हैं. बट मुझे ये लग रहा है कि आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ. अगर आपने उनको ब्लॉक किया है और अगर आप उनको, ऑफकोर्स दे कांट टॉक टू यू अगर आपने ब्लॉक किया है. बट अगर आप ब्लॉक्ड हो तो दे आर नॉट इन सिचुएशन टू टॉक टू यू राइट नाउ. मुझे लगता है कि काफ़ी उनको लग रहा है कि उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो दे से दैट दे फील दैट कि वो उनका कर्मा उनको मिल रहा है. दे प्रोसेसिंग द फीलिंग्स राइट नाउ. यस, मुझे लग रहा है इनसिक्योरिटी तो है. उनको लग रहा है कि कहीं आप मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना हो जाए. बट दे आर होपिंग, इनसिक्योर फील कर रहे हैं. बट दिस इज अगेन आई एम अफ्रेड टू लूज यू. दिस इज सो ब्यूटिफुल. आई लव इट व्हेन द एनर्जीज आर सो एक्यूरेट एंड दे आर एब्सोल्युटली. दिस रीडिंग इज 100% एक्यूरेट. क्लेम इट. रियूनियन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है. प्लीज क्लेम दिस विद 1111 पाइल 2. I have to let you go to find myself. Yes, at this very moment उनको लग रहा है कि उनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है. I am ascending का कार्ड आया था. This is absolutely accurate. No one understands me but you. अगर वो, मुझे लगता है I am done pretending, हो सकता है वो दूसरों को pretend कर रहे थे and they were not showing how much they care for you, या आपका connection hidden था. और oh yes, I can understand that. हो सकता है अगर उन्होंने आपसे झूठ नहीं बोला तो आपका कनेक्शन हिडन था. योर कनेक्शन वॉज अ सीक्रेट. उन्होंने अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से, लोगों से छुपा के रखा था. दिस कनेक्शन वॉज अ हिडन सीक्रेट. यस, और कहीं ना कहीं वो प्रिटेंड कर रहे थे कि देयर इज नथिंग बिटवीन द टू ऑफ यू. बट नाउ दे आर डन प्रिटेंडिंग. दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स. दे आर बीइंग रेडी टू एक्सेप्ट इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी दैट यू गाइज आर टुगेदर. दिस इज ब्यूटीफुल गाइज. एंड इसीलिए वो कह रहे कि नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू. तो दूसरों से झूठ बोल रहे थे. दे हैड केप्ट सीक्रेट्स फ्रॉम अदर पीपल. They were pretending, but I think they love you. And they say that आपसे बेहतर उनको कोई नहीं समझता, या कोई और समझता ही नहीं उनको. This is beautiful energies, guys. 1111 pile 2. Okay. Camera. I think आप लोगों की अगर फोटोज, रिमिनिसिंग का कार्ड था या डे ड्रीमिंग, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं. तो मुझे लगता है कि आपकी पुरानी फोटोज देख के and they want to make more memories also. Not only they are looking at old memories together, but they're also wanting to make more memories with you. This is beautiful card. Yeah.
The dragonfly, light-hearted and adapt, finding, oh my god, change, coming to light and heal. ये भी healing पे काम कर रहे हैं. This is healing. They're working on themselves. They are preparing themselves. They're changing themselves for you. They're becoming better person for you. वही यहाँ पर आ रहा था. I'm ascending. Clock. Oh my goodness. I think time उनके लिए क्रूशल है. मिस्ड अपॉर्चुनिटी में भी वही दिखाई दे रहा था कि उनको लग रहा था कि उन्होंने टाइम पे काम नहीं किया. They didn't act when it was needed to be acted and they when they should have. तो मुझे लग रहा है उनको टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम फील हो रहा है. They are also feeling insecure to lose you. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्लॉक इज टिकिंग एंड दे आर नॉट एक्टिंग ऑन इट. तो या फिर मिस्ड अपॉर्चुनिटी, जब जो करना था उन्होंने वो उस टाइम पे वो काम नहीं किया, उनको ये भी लग रहा है. हाँ, एंड देन दिस इज ऑल्सो अबाउट ब्रेक, the break that they are taking to work on themselves and working on healing themselves. Beautiful guys, this is 100% accurate energy, so please claim this with 1111 right now. And if you want to make this happen faster, please save this, share it with somebody, because reunion यहाँ पे आ रहा है. I see that. My goodness. Oh, so I was absolutely 100% right when I said that कि उन्होंने दूसरों के सामने pretend किया था. There was third party interference here है यहाँ पे third party का 100%. They pretended in front of other people that they didn't care or they didn't care enough or this was a hidden connection, but हो सकता है कि this is a third party connection also, इसीलिए वो छुपा के रखे थे. But now they are repenting that. Take your power back. You are going यू आर गिविंग कंट्रोल टू. हाँ, मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी यहाँ पर. हाँ, तो सकते अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली थे तो उन्होंने काफ़ी उनको पावर दे के रखा था. दे हैड अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर देम. वो अपना पावर वापस ले रहे हैं. अगर उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे उनकी लाइफ में और उनके ये कनेक्शन में, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी वो अपना पावर वापस ले रहे हैं. अब वो उनके लिए, वो उनसे मतलब दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन देमसेल्व्स एंड बी स्ट्रॉन्गर कि उनका इंटरफेरेंस नहीं हो इस कनेक्शन में. यस. सो वो कह रहे हैं कि अभी इन लोगों की मर्जी से कुछ नहीं होगा, अब मेरी मर्जी से होगा जो भी होना है. प्लीज क्लेम दिस एनर्जी 1111 पाल 2 पास्ट लाइव्स. आप एक दूसरे को जन्मों से जानते हैं. लाइव्स है यहाँ पे, जन्म जन्म का कनेक्शन है आपका गाइस. दिस इज अ डीप डीप सोलमेट बॉन्ड. या आई 100% फील दिस इज अ many lives, क्योंकि पास्ट लाइव्स का कनेक्शन है. ब्यूटिफुल एनर्जी गाइस. क्लेम दिस विद 1111. I love it when the energies are 100% in sync. I am ascending, awakening. Beautiful. ये energy is 100% accurate. This reading is 100% accurate. Claim this with 1111. Escape materialism. अभी वो realization में है, उनके अंदर shift और changes आ रहे. Change का कार्ड भी आया है. Dragonfly का कार्ड आया था which was talking about change. कर्मा का कार्ड आया है. अवेकनिंग 100%. दिस इज 100% रेजोनेटिंग. वो मुझे लगता है कि अगर उनके फैमिली और फ्रेंड्स बोल रहे थे आप दोनों के बीच में वैल्यूज का गैप था, दे वर आस्किंग देम टू फोकस ऑन समथिंग एल्स, उनको अब वो मुझे लग रहा है कि दे आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन लव, हीलिंग एंड दिस कनेक्शन. तो ये चेंज आ रहा है. दे स्टार्टेड सीइंग द ब्यूटी. अगर आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं, ये कनेक्शन में जो ब्रेक आया है, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस हैपेंड. वो इसमें भी वो रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दिस कनेक्शन वाज डिसबैलेंस्ड. कोई एक पर्सन ज़्यादा मेहनत कर रहा था, उन्होंने टाइम पे जो करना था, या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था जो उनको समझना था. ये सारी चीज़ें अगर नहीं हुई होती तो उनको ये चीज़ पता नहीं चला. अगर ये जो झगड़ा चल रहा है या नो कॉन्टैक्ट नहीं होता तो शायद ये सारी चीज़ें नहीं देख पाते या नहीं समझ पाते. नाउ दे आर कमिंग टू दैट अंडरस्टैंडिंग दैट दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स. थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को खत्म करना है. Nobody else should be important between the two of you. सिर्फ आप दोनों important होनी चाहिए. That's what they are realizing. और अब वो अपने फाइनेंशियल गोल्स पे, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस पे भी काम कर रहे हैं. एंड दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू कम टुवर्ड्स यू. सो गाइज, दिस इज 100%. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई, दिस इज 100% एक्यूरेट रीडिंग. आपको अगर इसमें से मैसेजेस रेजोनेट हुए हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर विद समबडी हु नीड्स टू हियर दिस. Claim this with 1111 and I will see you in my next reading. I'm sending you divine love and healing energies. Take care. Hi guys, Happy New Year 2026. Welcome to Quest and Crystal. My name is Chirag Dakshini. My soul name is Kaira. I'm a tarot reader. I'm an astrologer. I'm a Akashic reader.
I am a palmist. I am a certified yoga trainer. I'm also certified green belt Six Sigma, MBA Finance, MA in Gender Studies. This is all about me. अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. And also follow me in IG and FB. By the way, this is for the people who have selected this particular bracelet, pile number 3. जो लोग अपने पर्सन के साथ में नो कॉन्टैक्ट में हैं और दे वांट टू नो दैट कि उनके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. आई हैव 7 डिफरेंट डेक्स. मैंने ऑलरेडी कार्ड्स निकाल के रखे हैं. बाय द वे, दिस पाइल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स. मैंने इंट्यूटिवली जितने मुझे दिस डेक में से लगा उतने मैंने कार्ड्स निकाले हैं. दिस पर्टिकुलर पाइल हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स. सो या, विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन. Reflection, chemistry, unappreciated, and hope. Wow, beautiful, beautiful, beautiful. हाँ, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर कनेक्शन जो था उसमें वन ऑफ यू वर फीलिंग कि दूसरा पर्सन को इतनी पड़ी नहीं है. द पर्सन डिडंट केयर. वो हो सकता है, मुझे लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि यू डिडंट केयर. अगर उन्होंने आपके साथ में नो कॉन्टैक्ट किया, आपको ब्लॉक करके रखा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको यू डिडंट केयर इनफ फॉर देम. मतलब आपको उनकी परवाह नहीं थी. बट वो भी सोच रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी. उन्हें काफ़ी चीज़ों में क्लैरिटी आई है. अगर ये आप अंडर अप्रिशिएटेड फील करते थे, अगर आपको लगता था कि वो आपको ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर, अगर ये आपकी एनर्जी है तो कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर रहे हैं वो कि उन्होंने क्या गलतियाँ करी हैं. पर आप दोनों के बीच में अमेजिंग केमिस्ट्री है. दैट्स व्हाट दे से. आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस. वो आपकी तरफ बहुत खिंचाव फील करते हैं एंड आई एम श्योर दैट कि आपने भी वही फील किया होगा. तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि दे नेवर फेल्ट दिस वे फॉर एनीबडी एल्स एवर इन देयर लाइफ. और कहीं ना कहीं अगर यू गाइज आर एब्सोल्युटली लूजिंग होप, डोंट लूज होप, बिकॉज वो आपको कह रहे हैं कि डोंट लूज होप, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट. वो कह रहे हैं कि अभी भी वो आपके इस कनेक्शन को लेके होपफुल है. गाइज, प्लीज क्लेम दिस एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी. 1111 पाइल नंबर 3. Oh my god. This is the most romantic pile of all the 3, I must say. Forgive me. आपके पर्सन सॉरी बोल रहे हैं. सॉरी 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 सॉरी. जैसे कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. इफ दे हैव मेड यू फील अंडर अप्रिशिएटेड, दे हैव नेग्लेक्टेड यू, दे आर फीलिंग सॉरी. ट्रांसपेरेंसी का कार्ड आया है. वो कह रहे हैं कि यू सी रियल मी. अगर वो जैसे भी हैं, जो दुनिया को जैसे भी दिखाते हैं, पर वो एक्चुअली में जो फील करते हैं आप उनको बिना बोले समझ जाते हैं. दिस इज ब्यूटिफुल एनर्जी गाइस. क्लेम इट विद 1111. दिस इज ब्यूटिफुल. और अगर कई बार वो आपको अवॉइड करते हैं बिकॉज उनको पता है कि वो चाहे कितना भी प्रिटेंड करें या लोगों को दिखाए कि एकदम सही है, मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन आपको पता है उनके अंदर क्या चल रहा है. अगर आपकी बात नहीं हो रही है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि हाउ मच दे फील इनसाइड. आपके उनके दोस्तों को तो लग रहा है कि हाँ भाई वो तो 31 की पार्टी कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बट यू नो इनसाइड हाउ मच दे आर हर्टिंग. माय गॉड, होल्ड मी. माय गुडनेस, दिस इज ब्यूटिफुल. होल्ड मी. वो कह रहे हैं प्लीज मुझे गले में लगा, मुझे गले से लगा लो. गले से लगा लो, मुझे बाहों में भर लो. होल्ड मी. दिस इज सो रोमांटिक. दिस इज ब्यूटिफुल गाइस. प्लीज, दिस इज द मोस्ट मशी पाइल ऑफ ऑल. प्लीज इसको क्लेम कीजिए. क्लेम दिस 1111 पाइल 3. मैसेज ऑफ लव. आई थिंक बहुत जल्दी आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है. इफ यू गाइस आर इन नो कॉन्टैक्ट, सेव दिस सो दिस हैपेंस फास्टर फॉर यू. 1111, claim this reading. This message is coming. Love message is coming towards you. This is beautiful energy, guys. Wow, you deserve the best. वो कहते हैं कि आप बेस्ट हो और आपको बेस्ट ही मिलना चाहिए. You deserve the best. Beautiful. I could lose you myself in you. मतलब वो कहते हैं कि मैं आप में खो गया हूँ, मैं खो जाता हूँ आप में. I mean, I just मैं खो गया हूँ आप में, या मैं खो गई हूँ आप में. Whatever, take it whatever is applicable for you, but this is beautiful. This is very romantic, guys. Please claim this 1111 pile 3. I want to man up and honor you. अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, they coming up and giving you commitment. Beautiful, beautiful. Hold me, beautiful. Oh my goodness. Is there a second chance? अगर आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है, they are asking, are you going to give me a second chance? They want to really man up. They want to be the right person for you because you deserve the best. They want to come forward and they want to do the right thing by you. They are going to message you very quickly. Guys, second chance.
Love message. Claim this energy. 1111. Pile number 2. This is happening. Sorry, pile number 3. अगर pile number 2 बोला है तो there must be some messages for you in pile 2. Just have a look. Okay. I don't understand. बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं. उनको क्वेश्चन है कि अगर वो आपकी तरफ आए तो क्या आप उनको चांस देंगे या नहीं. I can't stop thinking about 100%. Maximum messages are in this particular pile. Guys, you have selected the pile. Your person is very romantic and they really are missing you a lot. They're coming towards you. Love message aa raha hai bahut jaldi. Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your life. This is the most... I think this is more beautiful and romantic than all the other things, I think. Claim this, guys. This is 1111 pile 3. This is beautiful. Oh, your person is so mushy. It was her. I was hurt by you. I think अगर आपके किसी कोई चीज़ कहने से उनको बुरा लगा है, they're processing that also. Yeah, they were hurt. अगर आपने, of course, in the process एक दूसरे को hurt होता ही है, झगड़ा होता है तो. Is it over and second chance? मुझे लग रहा है कि they are coming back. They're not ready to accept that this is over. They want a second chance. They're coming back. 1111, save this particular pile, please, so that this happens to you faster. I'm so excited. And please let me know once you guys connect back. The passion is too much. I 100% feel chemistry. Oh my goodness. I love it when the readings are 100% accurate. This is the most beautiful and romantic file of all. Beautiful, beautiful energy, guys. Claim this. Claim this. 1111. Self-indulgence, mirror, cut down. अभी वो मुझे लग रहा है कि स्टॉप द पैटर्न. मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों वापस ऐसे झगड़े करते थे, वापस आते थे, जाते थे, ऐसे कर रहे थे, तो वो इसको खत्म करना चाहते हैं. दे वांट टू स्टॉप दिस पर्टिकुलर पैटर्न. दे वांट टू कम वंस एंड फॉर ऑल. दे वांट टू जस्ट कम एंड ये सारी जो आना मिलना और बिछड़ना वो सब खत्म करना चाहते हैं. वो बस एक बार ये लिखा है ना, आई वांट टू मैन अप एंड ऑनर यू. मतलब अगर वो कमिटमेंट नहीं दे पाते थे, आप वापस आते थे, फिर वापस बोलते थे कि आई एम ट्राइंग, पर नहीं दे पाते थे या चीज़ें वापस से मैसअप हो जाती थी, तो वो इस सब को खत्म करके दे वांट टू रियली बी द राइट पर्सन फॉर यू बिकॉज यू डिजर्व द बेस्ट. ब्यूटिफुल एनर्जी. दिस इज एब्सोल्युटली 100% एक्यूरेट रीडिंग. क्लेम दिस विद 1111. आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं. अगर वो ये प्रिटेंड करे कि दे आर वेरी हैप्पी, यू आर प्रिटेंडिंग यू आर वेरी हैप्पी. दे आर गोइंग आउट विद देयर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं. यू आर मिररिंग ईच अदर एट दिस वेरी मोमेंट. सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू. आई थिंक आप लोग दोनों भी सेल्फ अप्रिसिएशन अपने आप को आप पे काम कर रहे हो. यू गाइस आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, योरसेल्व्स. दोनों भी मुझे लग रहा है आप अभी अपने आप को थोड़ा खुश करने की कोशिश कर रहे हो सकता है आप बाहर गए हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, नए कपड़े लिए हो, ग्लो किया हो. डिवाइन टाइमिंग. आई डू अंडरस्टैंड दैट कि डिवाइन टाइमिंग ये कहा जा रहा है कि अभी इट्स गोइंग टू हैपन वेरी वेरी क्विकली. मुझे लग रहा है डिवाइन टाइमिंग और सेकेंड चांस और मैसेजेस, मुझे लग रहा है कि दिस इज हैपनिंग वेरी क्विकली. डिफिकल्टीज, जेलस. मुझे लगता है कि आप लोगों के कनेक्शन में दूसरे लोगों की जेलसी की वजह से प्रॉब्लम्स आया है. इट कुड बी अदर पीपल हैव बीन वेरी जेलस, उन्होंने नेगेटिव एनर्जीज भेजी है, ईवल आई भेजी है. प्रोटेक्शन बंडल अगर आपको लेना है तो प्लीज कनेक्ट विद मी. आई हैव डिजाइंड अ प्रॉपर प्रोटेक्शन बंडल स्पेसिफिकली टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल दोज काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज. प्लीज कनेक्ट विद मी इफ यू लाइक टू बाय योरसेल्फ प्रोटेक्शन bundle. It's very simple. It cleanses the negative energies like anything. I mean, yeah. अगर किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी से evil eye है, it will be definitely gone and will protect you going forward. Your connection needs protection. Distance. The separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. आपके कनेक्शन में जो डिस्टेंस आया है, it is actually helping. इसलिए तो रिफ्लेक्शन का कार्ड था. I love it when the energies in the cards are so accurate. Look, reflection. Being away from you has given me a lot of clarity, and this separation was required for your relationship to grow. This is beautiful energies, guys. Claim it. ये सबसे उनको realize हुआ है कि they have to man up or woman up and do the right thing by you, and they are going to do this now. Free yourself. You don't need to be in control of everything for a love relationship to be successful. अगर वो बहुत ज़्यादा controlling थे या बहुत अपने आप को control कर रहे थे, अपने connection को, अपनी feelings को express नहीं कर रहे थे, या they were not going to the next level, वो सब निकल रहा है. They are releasing this particular need to control. Make the effort. The love is worth taking risks. You are called to move forward. I think वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं. I do see that in this particular pile you are going to receive a message very quickly. Claim this energy, guys. 1111, pile number 3. Okay.
100%. मुझे ऐसा लग रहा है कि they are at this very moment, just be, feel what you're feeling. They're just processing their feelings right now. Again, avoid toxic people. Person interference था यहाँ पे, वो jealousy. I said jealousy. There are people around you. Your connection needs protection. Guys, if you need to buy a protection bundle, please connect with me. Yeah, I think this connection needs protection because there is jealousy from other people. You are going to be like, you are advised to hang out with people who uplift your spirit, not bring it down. आपको भी पता है कि कौन से लोग हैं, please avoid them. टॉक्सिक लोग हैं जो आपके कनेक्शन पे जेलसी की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, उनको खत्म कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए अपने कनेक्शन को. एंड यू आर चार्मिंग. हैव कॉन्फिडेंस इन योर चार्म. अ लॉट ऑफ पीपल ग्रेविटेड टुवर्ड्स यू बिकॉज यू, दे लाइक यू फॉर यू. आपके पर्सन आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं. दे डेफिनेटली अप्रिशिएट यू अ लॉट. ब्यूटिफुल एनर्जी गाइस. सो जल्दी से इस पर्टिकुलर एनर्जी को 1111 पाल 3 के साथ में क्लेम कर लीजिए. सब्सक्राइब मी इफ यू नॉट ऑलरेडी डन दैट. फॉलो मी ऑन IG and FB. I'll see you in my next video. I'm sending you absolute divine healing energies, love and light. Take care.